Portion of the TIG torch, that is the tungsten welding torch, and in that there is a various kind of arrangement is provided for for passing the inert gases and to carry the tungsten electrode, and by carrying all this it is also important that it work properly and to maintain the heat as well. So there is some kind of arrangement is also provided to maintain the high heating temperature of the process. So then this particular as we discussed, that in holding the electrode, that TIG torch is hold the electrode and feed both the current and the inert gas to the weld zone, as we discussed. So what are the basic concept of this torch is to design basically that to provide a kind of atmosphere, basically to generate a kind of protective atmosphere uh, for a very highly efficient welding. So these components of this torch is basically the torch body, collect ceramic collect cup, nozzle, and the electrode. So these are the various components, and you can see here that the sectional view of this particular TIG welding torch, and as you can see there is L shape kind of projection that is of this particular torch, that is into the basic we can say that it is in the welding position basically. So I hope I have some figure. Yes, we have earlier. Wait, the way of welding, as you can yes, that the torch position. Okay, so that's why it is in that position to focus on the welding basically. And as you can see that nozzle having a kind of insulating material to conduct to maintain the heat basically, and to generate a kind of intense atmosphere with the help of that inert gas and the arc, and to provide a kind of heating atmosphere, protective heating atmosphere to the weld, and weld a very precise kind of advanced material like aluminum, magnesium, and their alloys as well. And as you can see, the red one is the tungsten electrode, which is very smaller in the size, and this is the below that there is collect in which it is to it is placed, and this is the collect nut, that is the nut to be tightened, and that the water passage is basically are providing for the cooling purpose of this particular chamber of that nozzle. So as we discussed that the intense heat is generated with the help of this inert gas and the electrode. So that creating a kind of very high heat. So to maintain the workability of that particular nozzle, that cooling passage is very necessary, and that's why this particular water passage is provided into that, from where the circulation of the water is taking place from the water tank, and then it circulated and then again reverse into the tank, so that can be reused kind of the water. And the another one is the second one is kind of a air cooling, right? So that is having another kind of a arrangement that providing a kind of a air cooling
to particular this nozzle, and that is you can see how these arrangements are made for the particular substance like a gas and the water and that particular wire, so that you can see water in water out electric current, and these all are provided here. So and in this first portion, that is the gas passage, and that is a particular name is known as the gas nozzle. So that nozzle is a very kind of a dragon fire like intensify, but it is focused kind of heating energy to be released for the welding of the magnesium and the aluminum and the other advanced materials. So moving towards to exploding this particular torch of that particular TIG welding. So as you can see, let me, yes, this is the thing, and that the particular portion that is at in angle we are going to be discussed now. As you can see how tiny these electrodes and the components are looking here, but they are having a kind of a dimension, and that you can see how these electrodes are fit in into that particular chamber to protect all the things and to provide kind of advanced welding. So that particular o-ring is also in the support a kind of a washer, that then the electrode that is to be collected in the electrode collector, and the torch body is there, and the collected body, and the high impact cup, that is the ceramic cup. As why ceramic material? Because it is high heat resistance, so that's why this particular material is to utilize for this torch. So you can see here that arrangement is not properly shown here, but we can see here with this elaborated way of to understanding how the torch basically is working and holding the electrode. So this technique basically, as we discussed also, that it is mostly utilizing for the root pass, that the first pass which is generated, and filler material, because it is only generating a kind of a heat, so we required a kind of a extra material that to be filled in that particular location in the base material. So that's why this particular kind of arrangement is to be made, and to perform a sound and clean welding, basically the root weld, that is to be performed by the skilled operator as certified by the AWS. So now the we can discuss about this particular tungsten electrode. So this tungsten electrode has a melting point of higher than any other metal, like at 6170 degree Fahrenheit, and the second to the carbon at the 640 degree. So that the electrode available as pure tungsten or alloyed with the 1 to 2% of thorium or the zirconium or cerium and the lanthanum. So these all the combination, the alloyed of that particular tungsten to maintain the workability of that particular welding operation. So that's the very important thing to be understand, that how a tiny electrode is to be made, and how these system are work together. So that's why these things we are learning, and the electrode that are available as per the tungsten or alloyed with 1 to 2% of thorium or 1% zirconium. So that is the practically non-consumable, but generally used for the AC welding as well. This is the electrode preparation and the maintenance, that how to maintain the tip of the electrode, that provide a kind of weld drops into the pool between the materials. So these technique is created for quality weld and quality weld weld material. So
This is the grinding to the pencil point. So this maintenance of the particular electrode is taking place by grinding to the pencil point, and it is done only when the welding is direct current electronegative for the carbon, the stainless steel, and the grinding on the fine grit hard abrasive wheels do not use to grind any other material, so that are done by this method. And the ball on the round ended of the electron to be made, that is only used for the direct current electrode strike arc on the piece of the copper, so that must not be over 1.5 time diameter of the electrode, so that the parameter need to be taking care when we perform this kind of work, maintenance work on that particular electrode, so that the using with the sine wave alternating current for aluminum and then aluminum magnesium alloy. So we utilize, as you can see, that the grinder way. So this is the technique that utilizing, and that is, you can see here the half of the time diameter of the electrode, that is the tungsten electrode, that is the taper end, and the grind end of the tungsten on fine grit हार्ड एब्रेसिव व्हील बिफोर द वेल्डिंग. सो वेल्डिंग करने से पहले ही जो है इस जो हमारा इलेक्ट्रोड है बेसिकली, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एक तरह से पेंसिल की तरह गढ़ते हैं. गढ़ने का कारण है कि किस तरह का वेल्ड पूल हमें, मतलब किस तरह का ड्रॉपलेट चाहिए, किस तरह की वेल्डिंग हमें करनी है बेसिकली, वो सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं. आगे हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली जो वेल्ड पूल क्रिएट होता है, इसमें से जो मटेरियल, वेल्ड मटेरियल को हम जनरेट करते हैं. सो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं दूसरे में, दैट इज़ काइंड ऑफ अ ग्राइंडर. आप लोग अपने वर्कशॉप में भी यूज़ किए होंगे ग्राइंडिंग व्हील को. सो दैट इज़ द प्रिसीजन वर्क. ये थोड़ा सा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है इसको करने में, कि हम अपने नॉर्मल ग्राइंडिंग में तो बस टंगस्ट कुछ भी हुआ लोहे को ले गए और डायरेक्ट लगा दिया, बट दैट ग्राइंडिंग व्हील इज़ ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ materials arrangement so that they can work properly. So if हम लोग को तो मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बस ले गए और उसको घिस दिया, बट इस ग्राइंडिंग व्हील की भी एक सेट डायमेंशंस हैं जिस पे वो प्रॉपरली वर्क करता है. So that is to be, you will study, I hope you studied in the manufacturing process, that how these grinding wheels are to be adjacent. So that is the basically utilizing this preparation, that is the idle tungsten preparation, that is before the welding it is to be performed, and that is the for stable arc, that is to be providing a kind of a flat, and the grinding wheel, the straight ground, these all are the points, that is position. As you can see in the first labeling, that the kind of flame kind arc is basically located, that which kind of type of arc is to be generated, and due to that the whirlpool is to be created. As you can see, this is the I think this is the wrong tungsten method, that we need to avoid, that sometime we are so creative to create a kind of groove settings. So इस
पोर्शन को हम लोग को नहीं करना है बेसिकली। इस तरह की कलाकारी जो है इलेक्ट्रोड के टिप के ऊपर नहीं करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो है उसका जो भी डिपोजिशन है आर्क का, राइट, वो अलग ही फ्लेम में बना हुआ है। सो दैट इज़ नॉट द इंटेंसिफाई, सो दैट 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 शुड बी अवॉइडेड। इस तरह की डिज़ाइनरी को हम नहीं बनाएंगे उस पर्टिकुलर टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर। हम बनाएंगे किसको, दैट द प्रिपरेशन, दैट इज़ द काइंड ऑफ इस तरह के नोक को हम रेडी करेंगे। ये भी हम कुछ हद तक इसको एक्सेप्टेबल करेंगे, राइट। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट किस तरह से हम आर्क को जनरेट कर रहे हैं और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज बिफोर दैट, ये कहते हैं ना, वेल्डिंग के पहले जो प्रिपरेशन होती है उसको करने की बात है। सो मशीन चलाने से पहले मशीन के हर एक पार्ट्स को सही तरीके से व्यवस्थित करने का जो काम है वो करने का क्रम है, और किस तरह से उसको करना है कि जिससे कि हमारा जो वेल्डिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि साइन वेव्स के थ्रू किस तरह का डायमेंशन और टंगस्टन मटेरियल को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट इज़ द बॉल काइंड ऑफ है। एसी के लिए एसी करंट प्योर, राइट, प्योर मटेरियल के लिए जो सिंपल है। सेमी पॉइंटेड है, आप देख सकते हैं सेमी पॉइंटेड को हमने कैसे बनाया हुआ था, दैट इज़ द इन्हांस स्क्वायर वेव, राइट। एंड थोरियम, सेरियम एंड लेंथनम के लिए दैट कंबाइनिंग है। उसके साथ है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए दैट द पॉइंटेड वन। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट क्या, वेल्ड किस तरह से करना है, वेल्ड करने का मतलब क्या, आर्क को कैसा रखना है, आर्क की इंटेंसिटी क्या रखनी है, ठीक है, कितनी तीव्रता होगी, या उसमें एक नॉर्मल पोजीशन होगा उसको मेटल को बेसिकली पिघलाने का और एक ड्रॉपलेट के रूप में उसको सही तरीके से पोजीशन करने का बेसिकली। सो इस तरह की बातों को ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर यूज़ में आते हैं, राइट। सो this is basically the hot wire welding system. As you can see, a typical TIG hot wire installation: the torch, the wire feeder, the power supply, the hot। अब ये जो हॉट वायर है, अब ये इसके बारे में, अब ये तो हम लोग बोल रहे थे कि इसमें तो हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, अब ये वायर कहाँ से आ गया। सो ये बेसिकली काइंड ऑफ अ फिलर वायर, ठीक है, फिलर मटेरियल का जो है ये वायर के रूप में इसको हम लोग एक तरह से प्रोवाइड किए हुए हैं। सो दैट इज़ द टॉर्च एंड वायर फीडर एंड द पावर सप्लाई, द हॉट वायर इंस्टॉलेशन। सो दैट द थिंग, as you can see, the close look, the practical, real practical look of that particular TIG hot wire welding system that employ the special wire feed torch that is mounted behind the TIG welding torch to supply the molten filler metal to weld pool. So फिलर मटेरियल वेल्ड पूल के अंदर प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट को हॉट वायर वेल्डिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये एक फिलर मटेरियल का वायर टिग वेल्डिंग के टॉर्च के साथ प्रॉपरली लगा हुआ है एट एंगल पे, और उस एंगल पे लगने की वजह से वो मटेरियल को फिल कर रहा है, मोल्टन मटेरियल को वेल्ड पूल के अंदर फिल कर रहा है। सो दैट द फीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज we already know. So this is the TIG welding. As you can see, it is the flat cone shape electrode tip, and which kind of weld bead it creates, so that direct current electrode negative system that is to be see, as you can see. So these are the basic concepts that we are going through, and if we talk about the shielding gas, that the shielding gas are very much important, playing role, and that
ये जो शील्डिंग गैस हम लोग देते हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल को वेल्ड करने के लिए, वो डिपेंड करता है किस तरह के मटेरियल को आप वेल्ड करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम आर्गन को ले लें तो जो जो कि बहुत ही कॉमनली शील्डिंग गैस है, और इसको हम लोग वेल्डिंग के बहुत ही मटेरियल के ऊपर उसको वेल्ड करने, मतलब वेल्डिंग के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं। हम स्पेशली स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम स्टील्स, नॉर्मल स्टील्स जो हैं उनको भी कर सकते हैं। अब इस आर्गन का जो है वो कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग विद द काइंड ऑफ, हम कहें तो उसके साथ हाइड्रोजन को मिक्स करके हम आर्गन को थोड़ा सा कहें तो एक तरह से हल्का रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं उसके इंटेंसिटी को बेसिकली उसमें मिक्स करके, एंड उसको उसमें हाइड्रोजन की वजह से उसको हेल्प करते हैं एक तरह से कि वो क्लीन वेल्डिंग को प्रोवाइड कर सके बिना किसी ऑक्सीडेशन के। सो जब भी इसमें जो आर्क होता है वो तो हमें पता है बहुत ज़्यादा हॉटर होता है, गर्म होता है, एंड एक ही जगह पे फोकस्ड होता है, जिसके वजह से जो क्या कहता है वेल्डिंग स्पीड है वो हायर हो जाती है। सो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हाइड्रोजन है वो क्रैक कर सकता है कार्बन स्टील के अंदर और वेल्ड मेटल के अंदर पोरोसिटी को बना सकता है, जो कि एल्युमिनियम अलॉय में भी हो सकता है। एंड दैट्स द थिंग, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम आर्गन और हाइड्रोजन को एक साथ यूज़ करेंगे। सो ये मतलब बहुत ही इंटेंसिफाई वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं जिसमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी तरह से अगर हम हीलियम की बात करें जो आर्गन के मिक्सचर के साथ, तो आर्गन और हीलियम को अगर हम मिक्स करेंगे इस पर्टिकुलर वेल्डिंग के लिए, तो उससे क्या होगा कि जो आर्क का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाएगा, हाई कर जाएगा, और जिससे जो वेल्डिंग की स्पीड है वो हम हायर करके वेल्ड कर सकते हैं। चूँकि टेम्परेचर राइज होगा तो मटेरियल ज़्यादा फिल करेगा और जल्दी जल्दी फिलिंग होगी, तो वेल्डिंग हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और डीपर पेनिट्रेशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम हीलियम को यूज़ कर रहे हैं और आर्गन के मिक्सचर के साथ, तो प्रॉब्लम ये है कि आर्क को इनिशिएट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट ये कॉस्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही इनर्ट गैसेज हैं एंड दे आर कॉस्टलियर, तो उस कॉस्ट को भी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करें टिग वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में, तो हमने सारे चीज़ों पे ध्यान दिया। देन अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर में जो आपको पावर सोर्स है बेसिकली, जो बेसिकली हेल्प करता है टिग वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने में, तो करता कैसे है, जो प्रोसेस है कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली प्रोसेस का। सो ये जो है टिग वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्क बनती है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो पॉइंटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में है, तो उसके वजह से जो एटमॉस्फेयर में उसके एटमॉस्फेयर में आर्गन और हीलियम रहते हैं, इससे जो बेसिकली हमने बात किया कि एक इंटेंस एक इंटेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और उस एटमॉस्फेयर की वजह से वेल्डिंग है वो फोकस्ड और हाई इंटेंसिफाइड हीटेड वेल्डिंग होती है। और जो पावर सोर्स की हम बात कर रहे थे, दैट इज यूटिलाइजिंग विद द ड्रूपिंग ऑपरेटेड एंड कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, कांस्टेंट करंट पावर सोर्स और ड्रूपिंग सिस्टम, और या फिर हम डीसी और एसी दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट करंट पावर सोर्स जो है वो हाई करंट को, एक्सेसिवली हाई करंट जो होता है उसको निकालने के एक तरह से कहें उसको अवॉइड करता है। और जो इलेक्ट्रोड होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है वर्कपीस के रिस्पेक्ट में। एंड ये तभी होता है जब कि कोई गंदगी होती है आर्क को शुरू करने के दौरान, या फिर किसी जैसे पुराने वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी तरह का मतलब अगर प्रॉब्लम आ जा रहा है उस सरफेस के ऊपर, तो उसके वजह से भी दिक्कत होती है। और अगर हम टिक की बात करें, अगर यही चीज़ मिग में हो तो जो फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक होता है पावर सोर्स का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी कांटेक्ट जो है वर्कपीस से
मतलब जो है वो डैमेज हो जाता है, काइंड ऑफ कॉन्टैक्टिंग, एंड इसके वजह से जो इलेक्ट्रोड टिप है वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, राइट, मतलब वर्क पीस के सरफेस के ऊपर। सो डीसी में क्या होता है कि आर्क जो हीट होती है, ठीक है ना, वो अप्रॉक्सीमेट 1/3 कैथोड से डिस्ट्रीब्यूट होती है और 2/3 एनोड पे होती है, राइट। तो जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा निगेटिव पोलैरिटी के साथ ही मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि क्योंकि ओवर हीटिंग ना हो, राइट, और मेल्टिंग भी मेंटेन रहे, राइट। इसीलिए हम लोग निगेटिव पोलैरिटी को इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में यूटिलाइज करते हैं ओवर हीटिंग को मेंटेन करने के लिए। और जो अल्टरनेटिव पावर सोर्स है वो कनेक्शन होता है डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी का, और इसका एडवांटेज यही है कि ये कैथोड जो है वो वर्कपीस के थ्रू लगा रहता है, और जो क्लीनिंग है ऑक्साइड कंटामिनेशन का उसको क्लीन रखता है सरफेस को। और इसी रीज़न से क्या है कि एसी को हम लोग यूज़ करते हैं इस मटेरियल को पर्टिकुलर यूज़ में लाने के लिए, राइट। सो दैट द पॉइंट। और अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के वेल्डिंग मटेरियल्स पे, एडवांस मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल पे भी हम वेल्ड कर सकते हैं, राइट। और लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर इसका हायर होता है, तो उस हिसाब से मटेरियल को, नॉर्मल मटेरियल को हम चूज़ करेंगे। और जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एक तरह से एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के लिए, साथ ही साथ जो निकल बेस अलॉय हैं उनकी भी वेल्डिंग के लिए ये पर्टिकुलर टिग वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए बेसिकली यूज़ में नहीं आता है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर हायर है तो उसी हिसाब से, लाइक सोल्डर हो गया, लीड हो गया, टिन हो गया, जिंक अलॉय हो गया, इनके लिए ये यूटिलाइजेशन में नहीं आता। और ये अगर हम कहें तो एल्युमिनियम की और मैग्नीशियम के स्पेशल ज्वाइनिंग के लिए बेसिकली इसको हमने मतलब यूटिलाइजेशन में ले आते हैं, जो कि रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड से बनता है, और रिएक्टिव मेटल लाइक टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, जो कि उसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ में मिलके एक्सपोज करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एज वेल इज़ हैपनिंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ साउंड वेल्ड। तो एक क्लीन वेल्ड प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इसका जो वेल्ड बीड होता है बहुत ही साफ होता है, सही होता है। और जो थिकनेस रेंज है, अगर हम वेरी थिन मटेरियल की भी बात करें तो 5 से 800 एम्पियरेज जो है करंट का है सप्लाई, उसके लिए वेल्डिंग मशीन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द थिकनेस। और जो टंगस्टन वेल्डिंग प्रोसेस है वो थिन बेस मटेरियल के लिए भी, ज्वाइनिंग के लिए भी एक तरीके से अगर हीट इनपुट मेंटेन करते हैं तो अच्छा रहता है, टाइट स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स को क्रिएट करते हैं और हाई क्वालिटी वेल्ड को परफॉर्म करते हैं। और एक तरह से कहे तो बहुत ही क्लीन प्रोसेस है, ज़्यादा फॉर्म्स और स्पार्क इसमें निकलते नहीं हैं, राइट। अगर निकलते भी है तो प्रोटेक्टिव गेयर के थ्रू उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। और जो हाई लेवल की विजिबिलिटी होती है वर्क के दौरान, और लो लेवल का स्मोक होता है, क्योंकि ज़्यादा तो हम मटेरियल को बर्न करते नहीं है, वी आर जस्ट हीटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग फिलर मटेरियल, तो स्मोक ज़्यादा क्रिएट होता नहीं है, राइट। और इसी की वजह से जो विजिबिलिटी है वेल्डिंग के दौरान वो बहुत ही अच्छी होती है, स्मोक और फॉर्म बहुत कम होते हैं, अप्रोक्स न के बराबर। और जो स्लैग है वो भी स्पैटर, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं ऑलमोस्ट। और अगर कोई या फिर हम पास मार रहे हैं या फिर वो कंप्लीट कर रहे हैं वेल्डिंग के, तो वो सब कुछ अवॉइडेड होता है। और इसका जो फिनिशिंग प्रोसेस, मतलब वेल्डिंग करने के बाद फिनिशिंग का जो टाइम है उसका भी, मतलब अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि टाइमिंग कम लगता है, क्योंकि ज़्यादा स्पैटर्स होते नहीं हैं और ये इजीली वेल्ड हो जाता है। और जो कि क्रिटिकल सर्विस एप्लीकेशंस के लिए भी, लाइक अगर हम बात करें कि मेटल पार्ट है, कोई हाईली एडवांस मटेरियल का मेटल पार्ट है और उसको हमें करना है, तो उसको हमें क्या करेंगे, हम इस मटेरियल को करने से पहले, मतलब वेल्ड करने से पहले जो भी है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, राइट। क्लीन करने के बाद ही इसको हम परफॉर्म करेंगे। किसी भी वेल्डिंग पोजीशन में ये वर्क कर सकता है। और टिग वेल्डिंग जो है वो
डिस्टॉर्शन को भी रिड्यूस करता है जब वेल्ड जॉइंट बनता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हीट सोर्स होता है, ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं, जिसके वजह से इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एज इन बात करें अगर हम जो हीट सोर्सेज की जो बात है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में, जो जो फिलर मटेरियल है उसको सेपरेटली यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर मटेरियल, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो वो है एडवांटेजेस की हम बात जो कर रहे हैं कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और इस पर्टिकुलर वेल्डिंग ऑपरेशन को हम फ्यूज़न अलोन वेल्डिंग के रूप में और फिलर मटेरियल के साथ यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होने चाहिए ऑब्वियसली, राइट। सो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बात यही हमेशा कर रहे हैं कि हाई हीट को प्रोड्यूस करता है, तो हाई हीट की वजह से कुछ तो बाहर की चीज़ें भी तो निकलेंगी। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, तो अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस की, तो एक चमकदार यूवी रेज किसी और अलग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हाईली चमकदार आर्क जो जनरेट होती है, आर्क उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द यूवी रेज जनरेट होती है। And the slower process than the consumable electrode. प्रैक्टिस बहुत मांगता है, ये थोड़ा कॉस्टलियर है, चूँकि प्रोसेस इतना एडवांस है। इसमें इलेक्ट्रोड जो मटेरियल है वो भी हम लोग टंगस्टन को यूज़ करते हैं, एंड एक्सपेंसिव है ही, क्योंकि एडवांस मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, आर्गन गैस यूज़ कर रहे हैं, इनर्ट गैसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता ही बढ़ता है। और पोर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। बेहतर है कि अगर इसको वेल्डिंग शॉप में ही हम रख के काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो मोल्टन टंगस्टन है इलेक्ट्रोड से अगर निकल रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हम बोलते हैं कि टंगस्टन इंक्लूजन, राइट। और यही सब डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसमें। और अगर ये वेल्डिंग गर्म फिलर रॉड के और एयर के कांटेक्ट में आ गया तो और अगर ध्यान से वेल्डिंग नहीं हुई तो क्या है कि वेल्ड जो है वो कंटामिनेट कर जाएगा और वेल्डिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और जब भी एक कहे ना कि अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारा सेफ्टी फर्स्ट है, राइट। तो व्हाट आर दीज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू keep it in our mind always, the kind of safety reasons that अगर हम हाई टेम्परेचर में वेल्ड कर रहे हैं, लाइक अगर एलुमिनियम की हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें एसी आउटपुट हाई फ्रीक्वेंसी का हम सेट किए हुए हैं, and that basically provide a kind of touching the pieces and to avoid the contaminations. So that the thing is to be taking care. So this is all about द काइंड ऑफ टिक वेल्डिंग। और इस टिक वेल्डिंग में अगर हम बात करें, क्रैक तो अकर होते ही हैं, और बेसिकली अगर हम सेफ्टी वाली बात करें कि टिक ग्लव्स अगर हम पहन के रखें, और जो गैस की सप्लाई है वो लो मॉइस्चर में अगर हम करें, मतलब जो जहाँ का वर्क इन्वायरमेंट है मॉइस्चर कम हो वहाँ पे, और क्लीन फिलर रॉड को यूज़ करें, जो वेल्डिंग एरिया वो ड्राई रहे। ये रेडियो एक्टिव जो फ्लेम्स हैं वो निकल रही हैं, और जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसके समय भी हमको ध्यान में देना है चीज़ों को। और ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो जो है उसको छोटा है साइज़ में, बट इट वर्क इफ़िशिएंटली, तो उसको थोड़ा ध्यान दे के हमें कैरी करना होता है। और यही सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना है और ड्यूरिंग द वेल्डिंग, एंड बेसिकली द स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड, सो वी मस्ट लीड टू लर्न। So this is all about for this lecture about this gas tungsten arc welding, and if required we will continue
with this or we will make another topic. So thank you.